हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन एंड मैनिफेस्टेशंस के बारे में। अगर आप इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इस ब्यूटीफुल यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन करें। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मैनिफेस्टिंग मनी, कैसे आई हैव मैनिफेस्टेड सम मनी and not some money, maybe I matlab, there was a time when I did not had much money on me, but I'm learning this practice and I'm getting good at this, so I thought maybe I should share it with you guys. इसीलिए आज I'll be teaching you how to manifest money like a pro. Okay. And रेजिस्टेंस हम सब में होती है, उसी को आज हम ओवरकम करेंगे। हम सबको पता है कि हमें कितने पैसे चाहिए, हमें उन पैसों का क्या करना है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस होती है, अरे कहाँ से आएंगे, है ना। उस रेजिस्टेंस को आज हम ओवरकम करेंगे इसी वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, दे ऑल वांट, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग स्किन केयर, मेकअप एंड ऑल। See, I can show you those stuff, I can do that, but I don't think so it's necessary. Okay, I don't think so it's necessary. पहले before discovering law of assumption, law of attraction, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, there is a lot of skin care and stuff going on, जैसे thousands of serums, thousands of face masks. There are like infinite number of skincare videos I have done, how to use retinol and all and stuff. But that was prior to discovering all this law of assumption stuff. ये मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आने से पहले का स्टफ है। अभी भी आई एम इन प्रोसेस बिकॉज देयर आर वेरियस थिंग्स दैट आई वांट टू चेंज इन माय लाइफ. So I'm just being honest, okay? I'm just a kid who had discovered the secret. So I am also learning, but I think so I can teach this. So that is why I'm teaching. And yeah, I can post skincare and all, but to be honest, I just have one serum and one moisturizer and sunscreen. This is my three-step, yeah, face wash also. One face wash, one serum, one moisturizer, and one sunscreen. That's all I'm using right now as a skincare. So I don't have much to show because that is working for me. Beach में this thing was flared up, like इतना ज़्यादा बढ़ गया था, कोई हिसाब नहीं. And then it started gradually, it started getting lowered. And in the beginning, when I was having like so strong faith and law of assumption, I was just using Nivea body moisturizer on my face, and to be honest, my skin was like in the best condition I can ever imagine, just because I was using law of assumption, right? And धीरे धीरे, just because I was going out, I was gymming, I was rubbing my face with towel while I was sweating, so gradually it was flaring up all the acne and all the reaction of benzoyl peroxide on my face. So I can post skincare and stuff, but I don't think so I have much to share because all I'm using four things in the morning and in the evening, same thing. So I don't have much to share. But I can do makeup tutorials, but I don't think so that's necessary. You know, guys, this, you know how to do this. So I don't think so it's necessary, though it makes me happy. It makes me happy, like, if अगर मैं खुद बैठी हूँ, ठीक है, this is my table and this is my almirah. So I like to sit down or stand up, whatever the way I like, and I like to take my time to, you know, accentuate my features and do my makeup. But yeah, I can share it. Actually, I can share it. So okay, from next time onwards, if you want me to share all the makeup tutorials, comment down below and I'll be doing it. Okay, for the girls, if they want. Okay, so now let's just get into the video. So my first question to guys who are watching this video right now, ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे, कितना अमाउंट है अभी आपके पास? बताओ, मैं सुन रही हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी. कितना अमाउंट है? 21 दिन में पैसा डबल.
नहीं. So suppose मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था. Suppose you are having 500 rupees. Okay, you have 500 rupees. Okay, and now you want more money. ठीक है. सो यू कैन स्टार्ट विद 500 रुपीज़ बिकॉज तुम्हें पता है कि 500 रुपये अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें कैसा फील होता है. ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं फील होता, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं. मतलब हाँ, हमें पता है कि इसको पकड़ने की फीलिंग क्या है. हम एक्चुअली अगर 500 का नोट नीचे रखते हैं और अपने हाथ को खाली रख के इमेजिन करें कि हमें कैसा लगेगा कि 500 रुपीज़ अगर हमारे हाथ में है तो हमें कैसा लगेगा. हम एक्चुअल में वो चीज़ फील कर सकते हैं. 2000 का तो नोट बंद हो गया है, सो वो तो हम कर नहीं सकते अभी. ठीक है, बट आप 500 के नोट्स 4 टाइम काउंट कर सकते हो विदाउट एक्चुअली होल्डिंग देम. अगर वो अभी अभी मैं आपको कहूँ कि आप 2000 रुपीज़ काउंट करो और 500 रुपीज़ मतलब 500 के 4 नोट काउंट करो, सो आप कर सकते हो, फील कर सकते हो उनकी फ्रेशनेस को, उनका कड़कपन. जैसे कचरा सेठ बोलता ना फिर हेरा फेरी में, एकदम कड़क. वैसे क्या आप उस चीज़ को फील कर सकते हो? हाँ, क्योंकि इतना अमाउंट हमने पहले काउंट किया हुआ है, या इतना अमाउंट हम पहले फील कर चुके हैं, या इतना हमने पहले कभी खर्चा हुआ है. ओके, सो आप उस अमाउंट से स्टार्ट करो जितना अमाउंट आप कंफर्टेबल हो, जो आपके पास है और जो आपने विदाउट एनी वरी स्पेंड किया हुआ है पहले. ठीक है, आप उस अमाउंट से स्टार्ट करो. आपके पास अभी जितने हैं उस अमाउंट से स्टार्ट करो ताकि आप में कोई रेजिस्टेंस ना हो. अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ आपको पूरे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते. आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने कभी 1 करोड़ रुपीज़ काउंट नहीं किए. या अगर आपको मैं अभी 1 करोड़ रुपीज़ दे दूँ तो आपको पहले पता ही नहीं चलेगा कि आप फील कैसे करते हैं. हमें अपने इमोशंस को पकड़ना है. अकॉर्डिंग टू द बुक द सीक्रेट, हमारे इमोशंस जो है वो एक गाइडिंग सिस्टम है हमारी बॉडी में. हमें कुछ अच्छा चाहिए, ठीक है, तो उस चीज़ की फीलिंग क्या होगी? अच्छी, है ना. तो अगर हम इमोशनली अच्छा फील करेंगे तो वही अच्छी चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगी, है ना. सो इस गाइडिंग सिस्टम को ना हमें यूज़ करना आना चाहिए. ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं. हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस डिसाइड करेंगे कि हमारी लाइफ में क्या आएगा, जो हम चाहते हैं या जो हम नहीं चाहते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन आवर इमोशंस, हम फील कैसा कर रहे हैं. तो अभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप 5 मिनट्स के लिए कहीं बैठें, आंख बंद करें, जितना भी अमाउंट आपके पास है. हम 500 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो आप 500 हाथ में पकड़ के आंखें बंद करके कहेंगे, मैं इस 500 रुपये के नोट के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. क्या मुझे और 500 रुपये मिल सकते हैं? कैन आई हैव मोर? आप लिटरली यही चीज़ 5 मिनट्स के लिए दोहराएं. और इससे होगा क्या? आई एम डैम श्योर कि ये काम करेगा ही करेगा. पहली चीज़, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैंने इस चीज़ को एक्चुअल में अपना के देखा है. इट्स लाइक जीने का नज़रिया बदल जाता है, मज़ा आने लग पड़ता है. ठीक है, एंड लिटरली व्हाट आई डू इज़ आई क्लोज माई आईज, आई होल्ड 500 का नोट एंड आई से आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस रुपीज़. सॉरी, आई से आई एम सो थैंकफुल फॉर दीज 500 रुपीज़. कैन आई हैव 500 मोर? ऐसा इतनी बार हुआ है कि मैंने ये सिर्फ एक बार बोला होगा, मैंने 5 मिनट के लिए भी नहीं बोला. एंड एक बार पूरे दिन में बोला होगा मैंने, वो भी ध्यान से. एंड उसके बाद मैं अपने काम में लग गई, जिससे मुझे एक्शन में खुशी मिलती है. एंड आई वॉज कीपिंग माई मूड अप. टू बी ऑनेस्ट, शाम तक आई वॉज समटाइम्स गिवन मोर देन वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग. ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग 500 आई वॉज गेटिंग 1000 और 2000 ऐसे. And literally I was just having that 500 rupees. मतलब this works and you can do it with any amount. If you are working, अगर तुम्हारे पास job है and you are credited an amount of like some salary every month, you can literally double it. लेकिन अब यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको यही क्वेश्चन मार जाता है कि कहाँ से आएंगे, कौन लाएगा, कैसे होगा.
उन्हें सोर्स जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और यहीं पे वो मात खा जाते हैं। जब उन्हें बोलें हम कि आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि आपके पास 500 मोर है, या आपको और मिल जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचने में लग जाते हैं कि वो आएंगे कहाँ से। अच्छा, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसा ऐसा हो सकता है, और उससे शायद मुझे 500 रुपये मिल सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप फिर उस चीज़ को चेस करोगे, और जब आप किसी चीज़ को चेस करते हो तो आप बाहर एक सिग्नल भेजते हो कि आपके पास वो है नहीं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ आपके पास कभी आ भी नहीं सकती। जो चीज़ आप फील कर रहे हैं, चाहे अच्छी या बुरी, वही चीज़ आपके साथ होगी। तो आप बाहर क्या सिग्नल भेज रहे हैं कि मैं वो 500 रुपीज़ चेस कर रहा हूँ। तो जब आप वो चीज़ चेज ही कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलेगा कि आप उसे चेज ही करते रहें और कभी भी उसे पा ना सकें। सिंपल। अब मेरे लिए तो ये शाम तक काम कर जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है जब मुझे नीड थी, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसा कहा हो सुबह और शाम तक मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि हाँ, मुझे वो अमाउंट मिल जाता है। बट कभी कभार नहीं भी होता, ठीक है, कभी कभार 1 दिन या 2 दिन लग जाते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने फेथ छोड़ दिया, मैंने होप छोड़ दिया, अरे यार ये काम नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट ट्राई दिस फॉर 1 वीक और सी यार, ये चीज़ खुद ब खुद तुम्हें अपना रिजल्ट देती जाएगी, एंड तुम इस चीज़ में और विश्वास करने लग पड़ोगे। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि 500 भी ज़्यादा है और इससे भी कम तुम ट्राई करना चाहते हो, तो पहले तो कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करो जिसमें तुम्हें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, जो तुम्हें पूरा भरोसा हो कि आई जाएगी, कहीं से भी आ जाएगी। कोई तो ऐसी चीज़ होगी, कोई फूड हो सकता है, कोई तुम्हारी स्पेशल आइटम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी का कॉल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। पहले उसे मैनिफेस्ट करो, फिर तुम मनी करो, ताकि तुम में कोई रेजिस्टेंस ना रहे, ठीक है। आप 1 वीक के लिए हर रोज़ सुबह 5 मिनट सिर्फ ये कहो, जितना भी अमाउंट यू वांट, ठीक है। आपको बस एक सिग्नल भेजना है बाहर कि आपके पास वो ऑलरेडी है, आपके पास वो ऑलरेडी है। बस एक सिग्नल भेजना है बाहर आपको, दैट्स ऑल। और वो सिग्नल आप भेजेंगे कैसे? अपनी थॉट से, क्योंकि हर एक थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कोई भी चीज़ सोचते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हायर फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो अच्छी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे हैप्पीनेस, काम, पीस, कंटेंटमेंट, पीसफुल, फ्रीडम। ये सब हैप्पी फ्रीक्वेंसीज हैं। पैशन, लव। जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो होती हैं एंगर, जेलस, हेट्रेड, वेंजेंस। ये सब होती हैं लोअर फ्रीक्वेंसीज। सो जैसा भी थॉट आप प्रोड्यूस करोगे, उसके साथ के इमोशंस जो आप फील करोगे, वही डिसाइड करेंगे कि आपको अच्छी चीज़ मिलेगी कि बुरी चीज़ मिलेगी। एंड दिस इज प्रूवन, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, ये सब नासा के प्रोजेक्ट्स में यूज हो चुके हैं, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर द प्रोजेक्ट नेम, बट ये विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है, इट वाज वेरी लाइक it was used in the projects of NASA. It is so powerful that humans can literally practice landing on different planets. Like we can calculate everything. हमें हर एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.0001 सेकेंड की टाइमिंग के हिसाब से अपने बड़े बड़े रॉकेट्स हम लैंड करवा रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विजुअलाइजेशन टेक्निक। इट्स सो डैम पावरफुल। अगर तुम अपने आप को सिर्फ इतना कमांड भी कर दोगे ना कि माई सबकॉन्शियस माइंड, आई कमांड यू, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ करो, सी, रिपीट करो तुम उस चीज़ को, ठीक है। और इसीलिए रेपिटेशन ज़रूरी पड़ जाती है यहाँ पे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अभी सोचें और अभी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ना ही वो होगा, और शुक्र है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आप खुद सोचो, अगर आप अभी एक एलिफेंट आप खुद सोचो कि अगर आप अभी एक एलिफेंट के बारे में सोचो, ठीक है, या आप अभी एक शेर के बारे में सोचो, और वो शेर आपके सामने आ जाए, तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो तो आपको खा जाएगा, है ना। वैसे ही आपको पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है, ठीक है।
अगर आप शेर को देखना चाहते हो तो कभी आप अपने आप को तैयार करोगे ना कि हाँ मैं किसी जू में जाता हूँ या मैं कहीं सफारी जाता हूँ जहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग होंगे जो मेरी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। मतलब आपको टाइम दिया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। एंड यहीं पे रेपिटेशन इंपॉर्टेंट होती है। आप जिस चीज़ का जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, जिस चीज़ का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वही चीज़ आपकी रियलिटी बनती जाएगी। सो प्रैक्टिस लाइक यू ऑलरेडी हैव मनी, काउंट योर इमेजिनरी नोट्स, करो इसे एक हफ्ता भी नहीं, आई वुड सजेस्ट 21 डेज करो, क्योंकि 21 डेज में ही आपको सही रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड सी यू विल एक्चुअली फील, आपको भागना नहीं पड़ेगा किसी के पीछे कि हाँ अच्छा अगर मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगा तो हो सकता है वहाँ से मुझे कैश आ जाएगा, अच्छा अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो हो सकता है मुझे वहाँ से पैसे आ जाएंगे, अच्छा ऐसा हो सकता है मैं वहाँ जाऊँ, फलाने से मिलूँ, फलाना काम करूँ और मेरा इतना अमाउंट आ जाएगा। ऐसा मत करना। आप अपनी वैल्यूज़ के साथ अटैच मत करो, आप अपनी वैल्यू मनी के साथ अटैच मत करो। आप बस इस चीज़ पे ध्यान दो कि आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, आप अंदर से खुश हो और आप हर किसी को खुशी खुशी बुला रहे हो, आप सबसे अच्छे से बात कर रहे हो, आप सबसे अच्छे से अ, आप सबको अच्छा फील करवा रहे हो और खुद भी अच्छा फील कर रहे हो। आप एक ऐसी अजीब सी स्टेट में हो जहाँ पे आपको बहुत खुशी है, आपको बहुत संतुष्टि है और आप उसी संतुष्टि से सबके साथ बात कर रहे हो। आपकी ऑरा ही वो है। जब आप ऐसी सैटिस्फैक्शन के साथ रहोगे, जो भी चीज़ चाहे वो 500 तो छोड़ो, वो कोई भी चीज़ होगी वही मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, वही आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी। So do this for 21 days and come back here and comment down in the comment section कि कैसी रही आपकी 21 days की ये journey. Try it for 21 days and comment it down, and I'll see you in the next video. Till then, keep watching. Bye.